Okay guys, what I have taught you in the last class is about the production definition, production function, and then the operational period, wherein I told you that there are two operational period. One is long run, another one is short run. In the case of long run, we can change the production level to any extent because all the factors of production are variable. The factor of production means the land, labor, capital, and entrepreneur. Wherein I told you that in the case of long run, if the manufacturer wants to change the scale of production, which means if they are producing suppose 10,000 units and they want to increase their production level, they want to increase their scale of production from 10,000 to 15,000 or suppose 20,000 units, they can do so because whatever they want for the manufacturing process, everything is available in the market. Suppose they want to increase their production, they need labor, so laborer is easily available. They need capital, they can easily procure the funds from the bank, or they need the land, then the land is easily available on rental basis. Then in that case, in the long run, whenever they want to increase the production, they can do so because all the factors of production are variable. But in the case of short run, it is not possible because in the short run only one or two factor remains variable and all other remains constant, which means the factors of production are the constant in the case of short run. It simply means whatever the factors, variable factors that are available, with the help of them only they can do the production. So there is a limitation over the production level in the case of short run. And I told you that law of return to scale operates in the case of long run and the law of variable proportion operates in the short run. Out of these two law, this one is important, that is law of variable proportion. Okay, but we have both we need to read both the laws. And after that I told you the definition of AP, MP and TP. AP means what the one labor is producing for you. TP means what the all labors are producing for you. MP means by increasing one labor, how much increase in total production you are getting, that is called marginal product. So simple definition that I have told you is the average product, that means the production from per unit of variable factor. Variable factor we are taking labor, and the total product I told you what the altogether product you are getting because of the employment of all the variable factors. And the marginal, in the case of marginal product, I told you the increase in total product which we are getting because of increase in one variable factor. I hope so you all remember this all things what I have told you in the last class. Now we are going to the law of variable proportion. This one is very important. इस पे थोड़ा सा फोकस करना. ये समझ गया ना बेटा तुम लोग? ठीक है. अब मैं एकदम इजी लैंग्वेज में पहले आपको समझा रहा हूँ. एवरेज प्रोडक्ट अपने मान ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. पहला तो बात आप ध्यान रखना कि ये किस में एप्लीकेबल है, शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है. शॉर्ट रन का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे खाली एक या दो फैक्टर ही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा. कहने का मतलब अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो या तो आपके पास लैंड है या तो आपके पास लेबर है और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन. अब मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट रन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल है. अब इसका डेफिनेशन को अपने को समझने के पहले एक बार आपका कंसेप्ट एपी, एमपी और टीपी का एकदम क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया है. एपी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर खाली मतलब एपी का एवरेज प्रोडक्ट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे खाली लेबर मिलेगा. तो एक लेबर मुझे क्या बना के दे रहा है, दैट इज़ एवरेज प्रोडक्ट. सारे लेबर मिलके क्या बना के दे रहे हैं, दैट इज़ टोटल प्रोडक्ट. एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल रहा है, दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट. क्लियर हो गया ना बात? अब आपको क्या समझना है, बहुत ध्यान से समझना. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अपने तीन पार्ट में क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकेंड वन इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, थर्ड वन इज़ लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न. आई रिपीट, law of variable proportion is classified into three types: law of increasing return, law of diminishing return and the law of negative return. तुम बोलेगा भैया ये इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या हुआ? तो बेटा एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में पहले समझो. अगर आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, सपोज टेक फॉर एग्जांपल आपके पास ये ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है. तुम बोलेगा क्या है, लैंड फिक्स है. अगर आप इसी में प्रोडक्शन करना है, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और ज़मीन चाहिए तो और ज़मीन नहीं मिलेगा मार्केट में. तुम बोलेगा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट रन चल रहा है. तो मैंने आपको आगे ही बताया है शॉर्ट रन में सब कुछ वेरिएबल नहीं है.
अगर आप सोचोगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो ये सब नहीं मिलेगा आपको। जो मिलेगा मार्केट में वो खाली लेबर है, यानी लेबरर्स। अब सपोज़ करो कि ये आपके पास ये ज़मीन है, आपको इसी में प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और इस ज़मीन में मैक्सिमम 100 लेबर काम कर सकता है। कितना लेबर काम कर सकता है? मैक्सिमम 100 लेबर, ठीक है। अभी मान लो कि इस ज़मीन में 40 लेबर काम कर रहा है, तो तुम समझ सकते हो क्या हो रहा होगा। तुम बोलेगा क्या हो रहा होगा भैया? तो बेटा अगर 100 आदमी का काम आप 40 आदमी से करा रहे हो तो अभी वो लोग के ऊपर काम का प्रेशर है। तो तुम बोलेगा भैया मुझे तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा? लेबर बढ़ाना होगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो तुम बोलेगा भैया मशीन उसीन लगा दीजिए, तो मशीन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि इस लॉ में अपने अज्यूम कर रहे हैं द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंट। तुम बोलेगा भैया ठीक है, मशीन नहीं बढ़ा सकते तो ज़मीन और ले लीजिए, या फिर आप पैसा लेके कुछ नया ज़मीन या कोई नया फर्टिलाइज़र ये सब यूज़ कीजिए। तो वो सब भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने क्या मान के चल रहे हैं, सम इनपुट्स आर ऑल्सो फिक्स्ड। कहने का मतलब शॉर्ट रन है तो खाली 1 या 2 फैक्टर ही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब फिक्स रहेगा। तो अपने अपने लॉ में किसको वेरिएबल मान रहे हैं? लेबर, बाकी सब फिक्स। तो इसका मतलब 40 लेबर काम कर रहा है, मुझे लेबर ही बढ़ाना होगा। तो मान लो कि मैंने और लेबर बढ़ाया, सपोज़ करो मैंने 40 लेबर और बढ़ा दिया। कितने लेबर हो गए टोटल मेरे पास? 80। तो क्या होगा जानते हो? आपने 40 लेबर बढ़ाया, यानी आपने पहले 40 था फिर 40 बढ़ाया, यानी आपने इनपुट कितना परसेंट बढ़ाया? 100% बढ़ाया। तो आपका जो आउटपुट आएगा ना बेटा, यानी जो प्रोडक्शन होगा आपका, वो प्रोडक्शन आपका 100% से भी ज़्यादा होगा। क्यों 100% से ज़्यादा होगा? इसीलिए ज़्यादा होगा प्रोडक्शन, क्योंकि जब आपने आदमी बढ़ा दिया तो काम जो पहले 100 आदमी का काम 40 आदमी कर रहा था, अब वो 100 आदमी का काम 80 आदमी करेगा। तो काम डिवाइड हो गया, यानी डिवीज़न ऑफ लेबर का कंसेप्ट आ गया। काम डिवाइड होने से क्या हो गया कि आदमी लोग के ऊपर प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से आदमी का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अगर तुमको बोल दिया जाए कि बेटा तुमको एक ही घंटे में इकोनॉमिक्स, एक ही घंटे में बीएसटी, एक ही घंटे में अकाउंट, एक ही घंटे में हिंदी और एक ही घंटे में इंग्लिश सब पढ़ना है, तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, सब पक जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आपके ऊपर काम को डिवाइड कर दिया जाता है तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है, पहले 40 आदमी कर रहा था 100 आदमी का काम, अब 80 आदमी कर रहा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू इनपुट। अब मान लो प्लस स्पेशलाइजेशन का भी कंसेप्ट आएगा बेटा। तुम बोलेगा भैया मतलब स्पेशलाइजेशन में आप क्या बोलना चाह रहे हो? बेटा स्पेशलाइजेशन का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम मिल जाएगा। तो इस कारण से क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा कंपेयर टू इनपुट, ठीक है। यानी सिंपल डेफिनेशन में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जो फिक्स फैक्टर है, अपना फिक्स फैक्टर क्या है? लैंड है, कैपिटल है। तो जो फिक्स फैक्टर है उसमें जब आप एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो, वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर। तो जब फिक्स फैक्टर में आप एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो, तो जैसे आप वेरिएबल फैक्टर यानी इनपुट को बढ़ा रहे हो तो आपका आउटपुट इनपुट से ज़्यादा आएगा। लेकिन एक ऐसा भी स्टेज आएगा जहाँ पर ये सेम हो जाएगा। तुम बोलेगा भैया नहीं समझे, मतलब अगर आपने 20 आदमी को और लगा दिया तो यानी पूरा 100 आदमी का काम 100 आदमी कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस का मतलब हो गया कि एकदम ऑप्टिमम लेवल में आपका प्रोडक्शन पहुंच जाएगा। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन हो रहा है। यानी आपका इनपुट अगर 100% से बढ़ रहा है तो आउटपुट भी आपका 100% से ही बढ़ेगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना आदमी का काम करना चाहिए उतना आदमी काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं 100 से ज़्यादा आदमी लगा दूं यहाँ पे, मान लो कि मैं 100 आदमी का काम है लेकिन मैं 150 आदमी को लगा दूं, तो तुम बोलेगा भैया बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि 50 आदमी के पास कोई काम नहीं रहेगा। 50 आदमी के पास कोई काम क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 100 आदमी का काम 150 आदमी कर रहा है। तो काम इतना ज़्यादा डिवाइड हो गया कि भाई अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका 50 आदमी के पास कोई काम नहीं रहेगा, वो लोग लेज़ी हो जाएगा। यानी एक एक लेबर का जो प्रोडक्शन है, पर्टिकुलर लेबर का जो प्रोडक्शन है वो फॉल होना चालू हो जाएगा। तो एक एक लेबर जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट, वो फॉल होना चालू हो जाएगा। और एक्स्ट्रा लेबर लगाने से तो आपको कोई फ़ायदा आएगा ही नहीं, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तुम बोलेगा भैया नहीं समझे, एक बार वापस से समझते हैं ना, चलो क्या दिक्कत है।
लॉ थोड़ा सा वैसा ही है भाई। आज अगर मेरे पास एक ज़मीन है जहाँ 100 आदमी काम कर सकता है, वहाँ 40 आदमी पहले काम कर रहा है, तो यानी वर्क का प्रेशर है, तो मैंने 40 आदमी बढ़ा दिया, यानी मैंने 100% इनपुट बढ़ाया, यानी वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को 100% बढ़ाया, तो आउटपुट मेरा 100% से ज़्यादा आ रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। क्यों 100% से ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि पहले 100 आदमी का काम 40 आदमी कर रहा था, अब 80 आदमी कर रहा है, तो काम डिवाइड हो जाने से, काम में स्पेशलाइजेशन आने से आपका क्या हो जा रहा है, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन इनपुट। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इस केस में क्या होता है कि एवरेज प्रोडक्ट यानी एक एक लेबर का एफिशिएंसी बढ़ने से आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, और एक्स्ट्रा लेबर लगाने से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? अब मैं बोल रहा हूँ 100 आदमी का काम आपने 100 आदमी को दे दिया, तो वहाँ पर क्या होगा जानते हो? वहाँ पर ये होगा कि एवरेज प्रोडक्ट तो आपका ठीक है, एकदम मैक्सिमम में पहुँच जाएगा, मतलब एक आदमी को जितना बनाना चाहिए वो उतना बना रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना चालू हो जाएगा। तुम बोलेगा क्यों फॉल होगा भैया मार्जिनल प्रोडक्ट? क्योंकि बेटा पहले आप सोच के देखो, आपको अकेले को बीएसटी भी पढ़ना है, इको भी पढ़ना है, अकाउंट्स भी पढ़ना है, तो आपको मालूम है कि भाई मेरा बेस्ट 4 के हिसाब से मेरा कॉलेज में एडमिशन होना है, तो आप बेस्ट 4 में पूरा दिमाग लगा के अपना मेहनत करोगे। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर लेते हो कि एग्ज़ाम में मेरे सामने वाला इकोनॉमिक्स पढ़ेगा और मैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो इसका मतलब आपका एफिशिएंसी कम हो गया, क्योंकि काम आपने डिवाइड कर दिया। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, जब 100 आदमी का काम 100 आदमी कर रहा है, तो एक्स्ट्रा लेबर लगाने से आपको फ़ायदा नहीं आएगा, वहाँ पर उन लोग का एक्स्ट्रा लेबर लगाने से आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा बल्कि कम ही होगा। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप 100 आदमी का काम 150 आदमी को दे देते हो, तो 50 आदमी तो खाली बैठा है, उन लोग के पास कोई काम नहीं है, बल्कि खर्चा भी देना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन फॉल होना भी चालू हो जाएगा। उस केस में एवरेज प्रोडक्ट भी कम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। अब इसी चीज़ को अपने को पढ़ना है। अपने क्या पढ़ें? फिक्स फैक्टर में एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं, तो पहले तो आउटपुट बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर आउटपुट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो लॉ भी यही बोलता है, विद द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। तुम बोलेगा क्यों? मैंने बताया ना, मशीन में कोई चेंज नहीं आना है। तो विद द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी द क्वांटिटी ऑफ इनपुट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज। अगर आप इनपुट को कंटिन्यूसली बढ़ाओगे, इनपुट यहाँ पे अपने लेबर को पकड़ रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट रिमेनिंग सेम। अदर इनपुट यहाँ पर जैसे ज़मीन, लैंड, कैपिटल, ये सब चीज़ अगर वो फिक्स रहेगा और एक इनपुट को आप बढ़ाते जाओगे, तो टोटल आउटपुट विल फर्स्ट इंक्रीज। पहले तो टोटल आउटपुट बढ़ेगा जो मैंने आपको समझाया, बट द रेट ऑफ इंक्रीज विल इवेंचुअली डिमिनिश। फिर बाद में धीरे धीरे आपका जो बढ़ रहा है ना प्रोडक्शन, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, डायग्राम को मैंने 3 पार्ट में किया है। ये जो डॉट डॉट देख रहे हो, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ सेकंड पार्ट, दिस इज़ थर्ड पार्ट, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इंडिकेट्स द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, stage 2 indicates the law of diminishing return, stage 3 indicates the law of negative return. Now how to classify these 3 stages? कैसे क्लासीफाई करोगे आप? अपने आप देखो, ये लाइन टोटल प्रोडक्ट का है, ये लाइन आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का है। someone is calling, तो let us discuss this part in our next video, okay?